As you already get to know that what I am going to discuss in this video, do not miss this video, just watch it at least full video. I am going to give you the honest solution of this problem, because I have also gone through the same problem, and there is some darkness, I would say there is some dark myth behind translation and learning language from translation. There are a lot of things. So one by one I am going to clear everything. Firstly, I will talk about the problem, how our mind get tracked by this translation habit whenever we start learning any language. So the first thing, when we want to learn speaking English, the first step we take to learn this language from our native language. That is absolutely okay. There is no any kind of mistake that you are doing. No, this is how, and that's how everyone is going to learn. I accept it. Then what we take, the first step, we start exploring those YouTube channels who teach us how to translate from Hindi to English. मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो सभी यूट्यूब चैनल को हम लोग विज़िट करते हैं जो लोग बता रहे होते हैं मैं खा चुका हूँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं खा रही हूँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बारिश हो रही है इसको कैसे बोलेंगे, मैं कैमरे के सामने बात कर रही हूँ इसको कैसे बोलेंगे, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको कैसे बोलेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स दे कैप्चर. That is absolutely okay. There is no anything wrong. I'm not talking about the YouTube channel. I'm talking about your habit. How do you get trapped in this habit of translation? You know, for the certain period of month, I would just tell you that for 1 month, 2 months is sufficient to watch these type of videos. But what we do the mistake, we stick with this video for the 6 months, for the 1 year, and we used to think in this way, once I get the every object name in English, automatically I am going to speak fluent English, which is never going to happen. मतलब ऐसे करते करते ना इंसान जिंदा भी ना रहे तब भी वो नहीं बोल पाएगा ऐसे इंग्लिश, कभी भी नहीं. जैसे वीडियोस में देखते हो हिंदी इंग्लिश वाले चैनल्स में, मैं असगंदी पर से कपड़े उठा रही हूँ, उतार रही हूँ, मैं कपड़े सुखा रही हूँ, उसको क्या बोलेंगे, मैं इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके ना कितना सीख पाओगे. वैसे पहले खुद ही सोचो ना, कितना हिंदी से इंग्लिश सीख पाओगे, कितना. एक दो सब्जेक्ट, मतलब 1-2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको ये सीख लोगे, 1-2 एक्शन है, 1-2 एक्शन करते हो जिसको मतलब एक बार मकअप कर लिया, हमेशा के लिए दिमाग में आ गया. अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मौका मिलेगा बोलने का, वो सेंटेंस ऐसे दिमाग में फिट है और हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं. नो. और सबसे पहली बात ये कि क्या सब कुछ को याद कर के जोर करके से इंग्लिश बोलने वाले हो. जस्ट लाइक मैं खा चुकी हूँ, इसका आपने सीख लिया आई हैव इटन. मैंने खाना खा लिया, इसका भी यही होगा आई हैव इटन. और दूसरे टाइम पे जो सेंटेंस होगा उसका अगर नहीं पता होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला वीडियो से आपने नहीं सीखा तो कैसे बोलोगे. तो वैसे नहीं होता है. हिंदी से इंग्लिश हर चीज़ को कन्वर्ट करके सीखना, जस्ट स्टॉप डूइंग इट. ऐसा करने से ना आपको वीडियो देख करके बस यही फील होगा, ओह मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं तो ये जान ही नहीं रहा था, मैं तो ये जान ही नहीं रही थी. अच्छा हुआ देख लिया, अभी नेक्स्ट टाइम से. फॉर एग्जाम्पल, as you can see there is curtain behind my back. Okay, so there is 2 type of sentence I can say. अगर मेरे को बोलना है कि पर्दा थोड़ा हटा दो, so draw back the curtain I can say. अगर मुझे नहीं आती इतनी परफेक्ट वाली इंग्लिश बोलने तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, कैन यू मूव द कर्टन लिटिल बिट, और कैन यू शिफ्ट द कर्टन लिटिल बिट. मतलब मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट. द अदर पर्सन कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशन. What you are trying to say, everything cannot be explained in the word. Even in Hindi or even in your native language, whenever we are overwhelmed, that time we don't get the words, appropriate words. So why are you exploiting yourself by torturing your mind that no, you have to explain everything in English, and it is important. It is important to pick every time perfect word.
तभी जब परफेक्ट करने के चक्कर में आते हैं ना तो पहले हिंदी करते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और जब तक मेरा इंग्लिश का सत्यानाश हो चुका होता है, मतलब फ्लुएंसी का खास करके। कितने सारे ऐसे लोग हैं, they are not able to speak fluent English because every time they are translating, and translation आ कहाँ से रही है? वो हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं सोसाइटी को, बिकॉज आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दोज टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल टॉक इन इंग्लिश। मैं भी नहीं बिलोंग करती हूँ, राइट। आई थिंक जो भी इंग्लिश सीखने वाले हो सारे 95% लोग वैसे हैं जो नहीं बिलोंग करते, इसी वजह से तो वो सीख रहे हैं ये लैंग्वेज। चलो ठीक है, आपने ब्लेम कर दिया ऐसे फिजिकली जो हम लोगों ने सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी हम लोगों ने क्रिएट किया। बट व्हाट अबाउट द ऑनलाइन सोसाइटी दैट यू हैव क्रिएटेड? हैव यू एवर चेक योर इंस्टा विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर फॉलोइंग एंड विच लैंग्वेज दे आर यूजिंग? क्या आपने कभी चेक किया है यूट्यूब पे आपने किस किस लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है? डू दे स्पीक इंग्लिश? Means I'm also talking about those type of YouTubers who just bring 1 month speaking English course. Do they really speak English? Have you ever find a single video where they are talking about any particular topic which is totally based on English? They are not using Hindi. मीन्स ये कैसे हो सकता है कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो लोग हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं और आप फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे? यस, आफ्टर वॉचिंग दोज टाइप ऑफ वीडियोज यू मे बी एबल टू स्पीक लिटिल बिट, यू मे बी एबल टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल सेंटेंसेस, बट नेवर यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट। मतलब जो हम लोग देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, हम लोग वैसा बनते हैं। You also believe this. इन्वायरमेंट हम लोग को जैसा मिल रहा होता है हम लोग वैसा बनते हैं, राइट? तो आपने कैसा इन्वायरमेंट बना रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे? किस किस लोगों को फॉलो कर रहे हो, किस किस लोगों को सुन रहे हो, ये भी तो मैटर करता है। सो जस्ट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। स्टॉप watching all those type of videos who are teaching you from Hindi to English. I'm not talking about the beginners. Yes, beginners can follow, but who already have sense, who already have basic education related to English, they should not follow those people. Strictly, in just a simple word I would say, do not follow. If you are going to follow, you are going to just bring a matter, bring a point to doubt yourself. मतलब अगर मैं भी ऐसे करने लगूँ ना, यार इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेंटिंग वैसे दीवार में टंगा हुआ है, उसमें कील में मैं लगाई हुई हूँ, तो मुझे भी नहीं आएगी। इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इन दिस वे, तभी मैं फिर जाऊँगी वो सारे वीडियोस पे जो लोग हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं, फिर उनको देखूँगी मैं। तो चलो आज तो मैं बोल पाऊँगी कि चलो कील को जो भी बोलते हैं, फिर मैंने हैंग कर रखा है वॉल पे पेंटिंग, इसको भी मैं बोल लूँगी। बट व्हाट अबाउट द अनदर एक्शन, हाउ आई विल डिस्क्राइब? मैं उसको भी ये यूट्यूब पे देखने जाऊँगी हिंदी से इंग्लिश क्या बोलते हैं, ऐसे तो पूरा लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा ना, तब भी मैं कभी फ्लुएंसी नहीं ला पाऊँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। येस, समहाउ यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट देयर विल बी नो फ्लुएंसी। I can guarantee it, there will be no fluency. So आपको करना ये है कि आप जो जो चीज़ कर रहे हो, जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, जिन लोगों को सुन रहे हो, देख रहे हो, उनको भी नोटिस करो, एंड जस्ट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू ग्रैब द फ्लुएंसी, चेंज देम, जस्ट रिप्लेस देम। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग हिंदी स्पीकर्स, you can listen English speakers also. If you want to learn this language, I'm not against anyone. My intention is not to provoke you against anyone. Just my intention is to aware you. That's how you can stop translating. Once your mind will become habitual of listening, watching, and whatever happening on the social media, because most of the time we are spending our time on mobile phone, so it's important. It play important role. हिंदी से इंग्लिश जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है दिमाग में, और ये इतना ज़्यादा एनर्जी को सोख कर लेता है कि मन ही नहीं होता इंग्लिश सीखने का।
सारा एनर्जी, सारा विटामिन, सारा प्रोटीन इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है कि हम लोग बिना बोले थक जाते हैं ट्रांसलेशन के चक्कर में फंस के। सो इसलिए अच्छा है कि माइंड को इंग्लिश ही सुनने का आदत लगाओ, इंग्लिश में जो भी सीरीज़ वगैरह चलता है वही देखो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उतना ही सीखो जितना की ज़रूरत है, ज़्यादा हर चीज़ इनिशियल टाइम में नहीं हो सकता है। पढ़ के कोई पंडित नहीं बना है। इन द सेम वे आप दुनिया भर का नॉलेज ग्रैब करने का कोशिश करो, तब भी कोई काम नहीं आने वाला है। मतलब एक एग्जांपल मैं दूंगी यार, लाइक मेरे को ये पता है, मैं इसको हैंड बोलते हैं, ओके। सो अब क्या ज़रूरत है मेरे को ये जानने का इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं, ये वाले को क्या। जब टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आई विल गेट टू लर्न। व्हेन आई विल फील कि अच्छा मेरे को नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, देन आई विल गो एंड सर्च ऑन गूगल। बट व्हाई आई विल वेस्ट माई टाइम इन इट? अननेसेसरी एजुकेशन क्यों लेना है, क्यों नॉलेज ग्रैब करना है अननेसेसरी? इसी चक्कर में ना टाइम बस निकलते जाएगा, 6 महीने, 1 year, 2 year, even after that you would not be able to speak. So it's important what you have to learn, this should be your priority. Just you need to retrospect all this thing, and then after just care about what you are listening, care about which type of people you are following. And most of the cases just do practice and try not to convert. Yes, for the 1 week it's going to be difficult, but from the second week you will find it little bit easier. There is nothing rocket science, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डील करने का सही तरीका होना चाहिए। 1 दिन में नहीं हो सकता, 10 दिन में भी नहीं हो सकता, लेकिन 11वें दिन थोड़ा सा हो सकता है, और वैसे कर करके इसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली इट गोइंग टू बी इंक्रीज। आई होप मैं सब कुछ कन्वे कर पाई हूँ इस वीडियो में। वॉट एवर आई हैड टू टॉक, नॉट ऑल द टाइम वी आर गिल्ट, वी आर कल्प्रिट ऑफ ट्रांसलेटिंग, नो नॉट ऑल द टाइम वी आर कल्प्रिट ऑफ translating. It's because of sometime our environment, and I think yes, I have covered all the thing. This video is just related to aware you, as I told you. So if you like the video, please like and subscribe. Do not skip it without subscriber, because it's important for me. And I'll see you in the next video. If you like the video, do let me know in the comment box.